Hello friends, good morning to all of you. Now today we will start with the illustrations which are left for inventories chapter, that is of stock taking concept. First of all, let us read this illustration number 8. A trader prepare his account on 31st March each year. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible till 15th April 2017, on which date the total cost of goods in his godown came to 5 lakhs. The following facts were established between 31st March and 15th April. Okay, so I believe instead of 31st March, his stock taking was done on 15th April, that is after the year ends. Sales was given 4,10,000, that is in between 31st March to 15th April, including cash sales of rupees 1 lakh. Purchases of 50,340, including cash purchase of rupees 19,900. Sales return 10,000. Goods are sold by a trader at a profit of 20% on sales. You are required to ascertain the value of inventory as on 31st March 2017. So I believe in this stock taking, okay, so now in this illustration of stock taking, I believe I told you earlier also, while solving the stock taking questions, we have to always remember whether that stock taking was done before or whether that stock taking was done after. If it is done before, two things we are going to add. That two things are purchases and second one will be the sales return. But if stock taking is done after the year ends, then we will add opposite two things, that is sales and purchase return, and we will subtract two things, that will be purchase and sales return. But while solving these for stock, I believe I told you earlier also that sales and sales return will be converted at cost price. So in this illustration also, it has been given that goods are sold by a trader at a profit of 20% on sales. So this is the GP ratio which has been given to us. So how to solve this question now? So I believe we will see it in this manner. Let me show you now. Okay, so what we are going to do, we will solve it as this, that is illustration number 8. We will make one format. Let me show you this. That is your calculation of closing stock on 31st of March 2017. We will make this small format. It is particulars and amount. Now first, stock taking on 15th April. It is given to us. Please can you tell me from the question, it is how much? It is rupees 5 lakhs. Now in this 5 lakhs, what we are going to do is, I hope we have to add two things. That is your sales, but we are going to take net sales at cost price. Net sales means sales minus sales return. So sales has been given to us as 4,10,000. What you have to remember is, we don't have to consider anything regarding your, okay. Now what we are going to take will be net sales at cost price. How we are taking this net sales at cost price will be 4,10,000 is a sales given to us. In that, including cash sales of 1 lakh, whether you sell goods at cash or whether you sell goods at credit, it has no use for calculation of your closing stock, because sales will remain sales only. In the same manner, applicable for the purchase also. But now in this question, if you will see in the first point, that is sales 4,10,000, we have taken that,
and from that we are subtracting sales return of 10,000. So 4,10,000 minus 10,000 we are doing, and from this is the net sales we got. From this net sales we are subtracting the GP ratio of 20%. I believe that has been given to us in this question, that is 20%. So we are subtracting that 20%. So 4 lakh minus 20% you will do. So I hope you will be getting 3,20,000. That is what you have to add in this, because ये 31st मार्च और 15th अप्रैल के बीच का सेल्स है. तो ये जो 31st मार्च और 15th अप्रैल के बीच का सेल्स है, आई बिलीव ये हमारे 15th अप्रैल को जब हमने स्टॉक टेकिंग लिया तो हमारे पास ये नहीं था. बट अगर हम इसकी बात करेंगे 31st मार्च को, तो ये स्टॉक हमारे पास था, क्योंकि ये सेल्स तो बाद में हुआ ना. तो 31st मार्च का स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं. और जो हमने परचेज करा इन दिस पीरियड वो हमें क्या करना है, लेस करना है. तो आई बिलीव हम इसमें से लेस कर देंगे परचेजेस, and that purchase of 50,340. Once you will do this, I believe you will be getting closing stock as on 31st of March 2017, and that closing stock, I hope you can see, it will be 7,69,660. That is how we have solved this illustration number 8th. Okay, after this illustration number 8th, now we have to understand 2 more things for solving the questions. First thing will be, which you have to always remember, as per accounting standard 2, inventories are valued at cost price or NRV, whichever is less. NRV means net realizable value. Net realizable value is calculated as selling price minus sales related expenses. That is called as your net realizable value. So as per accounting standard 2, inventories are always valued at cost price or NRV, whichever is less. That was the first thing. Now when we talk about the second point, okay friends, now the second point to understand for calculation of inventories will be, there are 2 types of goods. One is your normal goods and second one can be your abnormal goods. What are abnormal goods? So I mean, I want to say a very simple point is, those goods which are not normal, they will be called as abnormal goods. For example, there can be some slow moving items. कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारे सेल ही नहीं होते हैं. तो हमारे सेल ही नहीं होते तो हम क्या सोचते हैं, लो यार इनको कॉस्ट से कम में भी जा रहे हैं तो भी सेल कर दो, क्योंकि हमारा जो मनी इन्वॉल्व है वो तो फ्री होगा. या फिर हम उसको नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पर देते हैं. तो आई वुड लाइक टू से एबनॉर्मल गुड्स आर स्लो मूविंग आइटम्स विच आर वैल्यूड आइदर लेस देन कॉस्ट प्राइस or may be sold lower from the normal selling price. उसके अंदर सेम जीपी नहीं होता जो हमारा नॉर्मल गुड्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रहता है. तो दीज गुड्स आर कॉल्ड एज एबनॉर्मल गुड्स. सो नाउ sometime it may be happen for solving the questions related to inventories that question will give you the information of opening stock, purchases, sales, but question will not give you the and also question will give the information of closing stock, but instead of that they will give the information of GP, that is gross profit. If that will be given,
So what we are going to do will be, we are going to prepare trading account, and while preparing trading account we will keep abnormal goods in a separate column from the normal goods for the calculation of closing stock, which we are going to solve it now in illustration number 7, illustration number 9 and practical questions that you will understand from that illustrations. Okay, now before that there is one more point which I have made you understood before also, but right now also while doing solving the illustrations, let me tell you this thing again, that जब भी हम इन्वेंट्रीज की कॉस्ट लेते हैं, जो भी एक्सपेंसेस हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, वो तो हम हमेशा इसकी कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, बट जो भी एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, that will be excluded while calculating inventories cost. That is what you have to remember for calculation of inventories cost. जो भी expenses आपने मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे वो तो इंक्लूड करना है, और जो भी एक्सपेंसेस आप P&L अकाउंट में लिखोगे वो हमें एक्सक्लूड करना है हमेशा. मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे वो इंक्लूड करना है. इसका एग्जांपल आई वुड लाइक टू से वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, दैट ऑल. और जो भी P&L में लिखे वो एक्सक्लूड करना है. उसका एग्जांपल, तो उसका एग्जांपल सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, राइट, and I want to say that is your rent of the go down, that all expenses will be excluded. तो आपके लिए बहुत सिंपल सी बात बता दी मैंने, जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में लिखना है वो तो इंक्लूड होगा, और जो P&L में लिखना है वो एक्सक्लूड होगा. Okay, so these are the 2 points which you have to remember. First, earlier one which I told you first point, and now this one was your second point. Now we can start with your illustrations. Let us see your illustration number 7th now. From the following particulars, ascertain the value of inventories as on 31st March 2017. Inventories as on 1/4/2016, that is given 140 to 500. Purchase has been given 760 to 500. Manufacturing expenses has been given 1,50,000. Selling expenses given 60,500. Administrative expenses given 30,000. Financial charges given 21,500, and sales has been given 12,45,000. At the time of valuing inventory as on 31st March 2016, a sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year for 45,000. Bearing the transaction related to this item, the gross profit earned during the year was 20% on sales. Okay, bearing the transaction related to this item means apart from this transaction, the normal GP ratio was 20% on sales. It has been given to us. So I believe जब भी GP का information हो गया ना, तो it is very simple to find out the answer. What we are going to do will be, in illustration number 7th, we will prepare trading account. And while preparing trading account, I believe I told you, we will keep normal goods and abnormal goods in a separate column. This is your trading account, right? This is your normal goods and this is abnormal. This is normal goods, and this is abnormal. Okay, now in this trading account, which is your normal and abnormal given to us, what we are going to do is, first we will write inventory as on 1/4/2016, that is your opening stock, right? But in this opening stock 140 to 500 which is given to us, it was given at the time of valuing inventory as on 31st March 2016. It means last year जब आपने इस inventories को valued करा था, a sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000. इसका मतलब इस 50,000 में से आपने 17,500 उसको write off कर रखे हैं.
अगर आपने 17,500 राइट ऑफ कर रखे हैं 50,000 में से, तो उसका वैल्यू कितना बचा होगा? तो आई वुड लाइक टू से वैल्यू उसका बचा होगा 50,000 माइनस 17,500, क्योंकि वो राइट ऑफ करा हुआ है। तो द वैल्यू विल बी 32,500, क्योंकि 17,500 माइनस कर देंगे ना हम 50 में से, तो 32,500 का स्टॉक की वैल्यू 142,500 में इंक्लूड है, जो कि क्या है? एबनॉर्मल, क्योंकि जो 50,000 का परचेज करा उसमें से 17,500 आपने राइट ऑफ कर दिए, तो 32,500 उसकी वैल्यू बची हुई है, और ये हमारे ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। तो ये क्या हुआ? ये नॉर्मल नहीं रहा, ये क्या रहा? एबनॉर्मल। तो इसका मतलब जब आप यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिखोगे तो इस ओपनिंग स्टॉक के दो पार्ट्स हो जाएंगे। 142,500 जो आपको गिवन है ना, ये 142,500, इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। नॉर्मल गुड्स 1,10,000 के और 32,500 का आपका एबनॉर्मल गुड्स। ये मैंने ओपनिंग स्टॉक से हटा दिया। इसके बाद हमें सेकंड क्या गिवन है? परचेज गिवन है। कितना गिवन है परचेज? परचेज गिवन टू अस वाज 7,62,500। अब आप वापस से पढ़ो इसमें, तो आई बिलीव परचेज में कोई भी एबनॉर्मल गुड्स इस साल परचेज नहीं है। कोई बोलेगा सर ये परचेज जो था 50,000 का, आई वांट टू से वो तो लास्ट ईयर का था, और ये परचेज जो आपको गिवन है, ये परचेज जो आपको गिवन है वो तो इस साल का है, तो वो तो पूरा का पूरा नॉर्मल में चला जाएगा 762,500। इसके बाद आपको गिवन है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वो भी एज इट इज ही आप लिख दोगे। वो कितने गिवन है? 1,50,000। वो तो इंक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, तो वो मैंने लिख दिया। बट सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड करना है क्या? नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं, फाइनेंशियल चार्जेस नहीं, बिकॉज ये तीनों सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और फाइनेंशियल चार्जेस, ये तीनों किस में आएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो इन्वेंट्रीज की वैल्यू के टाइम नहीं आएंगे। उसके बाद हमें गिवन है सेल्स। सेल्स गिवन है 12,45,000 की, और हमारे पास इस बार ये इंफॉर्मेशन साथ में गिवन है कि ये जो आइटम था ना एबनॉर्मल 32,500 का, 50,000 की कॉस्ट का 17,500 राइट ऑफ करके जो एबनॉर्मल आइटम था वो हमने इस साल बेच दिया था। कितने में बेचा? 45,000 में। तो जब आप यहाँ पर सेल्स लिखोगे तो ये सेल्स के भी दो पार्ट्स हो जाएंगे। 1245 जो आपको टोटल गिवन है, इसमें से आप 12 lakhs की तो आपके नॉर्मल गुड्स की हो गई, और 45,000 की एबनॉर्मल गुड्स की, जो आपके पास क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो देखो मैंने क्या करा अभी, मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन में ऐसा करा है कि जो भी आपका नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स था, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक में हो, चाहे वो परचेज में हो, चाहे वो सेल्स में हो, मैंने वो तीनों को अलग कर दिया, वो दोनों को अलग कर दिया इन तीनों में से। तो नाउ व्हेन वी हैव डन दिस, तो आई बिलीव अब हमारे पास जीपी रेशियो कितना गिवन है? बेयरिंग टू दिस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दैट सम ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20%। तो अब मैं यहाँ पर नॉर्मल जीपी लिख सकता हूँ 20% ऑफ दिस 12 लाख। इस 12 लाख का 20% मैं निकालूंगा तो 2,40,000 आ जाएगा। Once I have done with this, I believe ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जीपी है, तो मैं इधर का टोटल कर सकता हूं, और इस टोटल में से मैं जब सेल्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। एबनॉर्मल गुड्स का मुझे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितना एबनॉर्मल गुड्स खरीदा था वो पूरा का पूरा सोल्ड कर दिया। अगर क्वेश्चन इसमें ऐसा बोलता कि जो मैंने पूरे गुड्स खरीदे इसमें से हाफ ही सोल्ड करे, तो हाफ एबनॉर्मल गुड्स अलग से बच जाता, और मैं उसको नॉर्मल गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक के साथ हाफ एबनॉर्मल गुड्स जितनी भी वैल्यू करूंगा वो लेकर के मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल लेता। आई बिलीव व्हेन यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, तो अगर आप इसको ऐड करो तो 11 + 7 विल बी 18, 19, 20, 21, और आप इसको ऐड करोगे तो आई थिंक 22 समथिंग। आप इसको चेक कर लो एक बार ऐड करके, और जब आप इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो आपके पास यहाँ पर 62,500 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो इसको। ये 1,10,000 था, सॉरी मैं थोड़ा गलत ऐड कर रहा था उसको, आप उसको चेक कर लेना। ये आपका टोटल 12,62,500 आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो इसको, 12,62,500। कोई बोलेगा सर एबनॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट का क्या करना है? कुछ नहीं करना है,
वो तो नॉर्मल जब वो जीपी आएगा तो जब हम पीएनएल बनाएंगे तब इन दोनों जीपी को ऐड करके लिख देंगे, बट अभी हमसे जीपी थोड़ी पूछा है, हमसे तो अभी क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। तो ये मैंने जो आपको तरीका बताया है बहुत आसान तरीका था क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करने का। व्हेन यू विल सी दिस वन नाउ, इनका सॉल्यूशन, तो इन्होंने देखो इन्वेंट्रीज लिया, इन्होंने इसमें से 32,500 अलग कर दिया तो 1,10,000 ही बचा, फिर इन्होंने परचेज और मैन्युफैक्चरिंग ऐड कर दिया, टोटल आ गया। फिर इन्होंने सेल्स लिया, सेल्स में से पहले एबनॉर्मल गुड्स की सेल्स को हटाया, जो बचा फिर उसमें से उन्होंने जीपी हटा दिया, हमने भी तो वही करा, इसमें से जीपी हटा दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बचा, वो माइनस कर दिया तो आपके पास इन्वेंट्रीज आ गया। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, बट द वे आई एम शोइंग दिस वन इज अ इजी मेथड। ओके, so that was, friends, that was your illustration number 7th. Okay friends, after illustration number 7th, now we will do illustration number 9th. But before this illustration number 9th, one more thing I want to share with you all. That thing is, sometimes it may also happen that जब आपने अभी नॉर्मल गुड्स का तो वैल्यू देख ही लिया था और अभी आपने ये भी समझ लिया कि नॉर्मल गुड्स को एबनॉर्मल गुड्स से अलग रखना है। अब सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा बोलता हूं कि आपके है ना एक एग्जांपल ऐसा बोलता हूं कि आपके पास नॉर्मल गुड्स का जैसे आपने क्लोजिंग स्टॉक निकाला वो तो निकाल लिया, ठीक है। अब मैं आपके पास आया, सपोज करो वो नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक आया 1 लाख रुपीस का, एग्जांपल है ये मेरा, अब है ना। अब इसमें अगर मैं आपको साथ में इंफॉर्मेशन दूं कि इस 1 लाख रुपीस में 10,000 की कॉस्टिंग का गुड्स है, 10,000 की कॉस्टिंग का गुड्स है, जिसमें से मुझे 4,000 राइट ऑफ करने हैं, 4,000 राइट ऑफ करने हैं। अगर मैंने आपको ऐसा बता दिया कि इस 1 लाख के अंदर 10,000 के गुड्स हैं, कॉस्टिंग के गुड्स हैं, जिसमें से 4,000 राइट ऑफ करने हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस 1 लाख के मैं 2 पार्ट्स कर दूंगा, 10,000 अलग और 90,000 अलग। तो 90,000 तो मेरा नॉर्मल हो गया, और ये जो 10,000 जिसमें से 4,000 राइट ऑफ करने हैं तो 6,000 की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया भाई इस 1 लाख के 2 पार्ट्स हो गए, नॉर्मल 90,000 और एबनॉर्मल वो हो गए मेरे 10,000 के, ठीक है। मगर इस 10,000 में से 4,000 तो राइट ऑफ हो गए, तो कितने बचे 6,000। तो इसका मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 90 + 6 दैट इज 96,000। अब कोई बोलेगा सर इतना ज्यादा करने के बजाय बहुत सिंपल सा क्या था, अगर इस 1 लाख में से कोई कॉस्टिंग के गुड्स का 4,000 राइट ऑफ करना है तो मैं डायरेक्टली भी तो बोल सकता हूं 1 लाख में से बस 4,000 हटा करके 96,000 कर दूं यार, इट विल बी वेरी सिंपल फॉर मी। Okay, this is the thing which we have to understand now in illustration number 9th. अब यही चीज है जो बस अब हम illustration number 9th में देखेंगे। Okay friends, तो now let us see this illustration number 9th. Let me read this. Inventory taking for the year ended 31st March 2016 was completed by 10th April. अब इसमें क्या है, ये मिक्स क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो तो आएगा ही सही, नॉर्मल एबनॉर्मल गुड्स की बात तो आएगी ही सही, और साथ में वो स्टॉक टेकिंग वाली बात भी आएगी कि स्टॉक वाज टेकन आफ्टर द ईयर एंड और इट मे बी टेकन बिफोर द ईयर एंड, बट इफ यू विल सी स्टॉक टेकिंग वाज कंप्लीटेड बाय 10th April, it is given to us that stock taking was completed by 10th April, तो इसका मतलब वो वापस आफ्टर हो गया, ठीक है ना। तो नाउ लेट अस रीड दिस। इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 was completed by 10th April 2016. The valuation of the which shows a inventory figure of 16,75,000 at cost as on the completion date. After the end of the accounting year until the date of completion of the inventory taking, sales for the next year made was 68,750, profit margin being 33.33% on cost. I believe 33.33% on cost का मतलब होता है 1/3 on cost, तो 1/4 on sales. Okay, and purchase for the next year include amounting to 90,000 at cost less trade discount of 10%, ठीक है। तो अब इसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करना है। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू इन्वेंट्री
at a markup price of 3000 in respect of sales written. मार्कअप प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस ओनली, और वो सेलिंग प्राइस कितने की है? 3000 की इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न. आफ्टर इन्वेंट्री इट वॉज फाउंड दैट देयर वर सर्टेन वेरी old slow moving item costing 11,250 which should be taken at 5,250 to ensure disposal to an interested customer. Due to the heavy flood, certain goods costing 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of customer. As a result, customer refused to take the delivery and net realizable value of the goods was estimated to be 12,500 on 31st March. Compute the value of inventory for inclusion in the final accounts for the year ended 30th March 2016. Okay friends, so now we are going to... Okay friends, so now in this illustration number 9th, I believe we will prepare this statement showing closing stock as on 31st March, particular than amount. Let us read this. Stock taking जब हमने करी थी तो stock का value कितना आया था? Stock taking on 10th April when you did that 10th April को स्टॉक टेकिंग का वैल्यू था 16,75,000, राइट. इसके बाद आई बिलीव हमें इसके बाद गिवन है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द कंप्लीशन स्टॉक सेल्स वर मेड एट 68,750. तो आई होप इस सेल्स को हमें ऐड बैक करना है, ऐड सेल्स, और आई वुड लाइक टू से हम इसको नेट सेल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें ये 3000 का सेल्स रिटर्न भी है. तो हमारा सेल्स हुआ था, नेट सेल्स मगर लेते हैं, मगर वो किस पे लेंगे हम? कॉस्ट प्राइस पर. तो हमारा सेल्स हुआ था 68,750 का, और इसमें से 3000 का हमारा क्या था? सेल्स रिटर्न था. तो ये तो हमारा नेट सेल्स आ गया. अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? हम माइनस कर देंगे 25%. ये 25% कैसे आया? 1/3 ऑन कॉस्ट था तो 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस होगा. प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन ये जो गिवन था ना हमारे पास क्वेश्चन में, 33% ऑन कॉस्ट चाहिए, तो 1/3 ऑन कॉस्ट तो 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस. तो आई बिलीव सबसे पहले आप 68,000, लेट मी ऑल्सो सॉल्व इट, 68,750 माइनस 3000 तो 65,750, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 25%. तो हमारे पास नेट बच जाएगा, माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट बच जाएगा 49,312.5. ये हमें ऐड बैक करना है 49,312.5. आप सब भी प्लीज़ एक बार चेक कर लो, यही हमें ऐड बैक करना है, ठीक है? सही आ रहा है ना ये? 65,750 माइनस 25%, 68,750 का 65,750 हो गया, और दिस वन यू आर डूइंग. ओके, इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है? नाउ दे हैव गिवन अस परचेजेस, राइट? नाउ दे हैव गिवन अस परचेजेस. इसके बाद, और परचेज कितना था? 90,000 का था. तो वो परचेज को हमें क्या करना है? दैट परचेज को हमें लेस करना है. तो लेट अस सबट्रैक्ट दिस, लेस परचेज, और परचेजेस हमारे पास गिवन है 90,000 लेस 10% TD, ट्रेड डिस्काउंट. तो आपके पास आ जाएगा 81,000 का जो आपको लेस करना है. तो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बन जाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी value of inventory will be 16,75,000 plus 49,312.5, और इसमें से माइनस करेंगे हम 81,000. पास आ गया 16,43,312.5. ओके, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, 16,43,312.5. ये तो हमारे पास आया क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च, ठीक है? ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का तो आंसर आया.
बट अब देखो, अब हम इसके आगे भी पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें दो टाइप के एडजस्टमेंट है। अब देखो, आप इसके आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखो, आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट, अब हमें क्या बताया है, देर वर सर्टेन वेरी स्लो ओल्ड मूविंग आइटम। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि स्लो ओल्ड मूविंग आइटम का मतलब होता है एबनॉर्मल, जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी 11,250 की, जिसमें से हमें कितना राइट ऑफ करना है, उसकी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 5250 टू इंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 11,250 की चीज को मैं 5250 लिख रहा हूं, तो स्लो मूविंग आइटम के मेरे को लेस करने चाहिए, स्लो मूविंग आइटम को मैं राइट ऑफ कर रहा हूं 6,000 से, क्योंकि इसको मैं 11,250 की वैल्यू को मैं 5,250 ही चाहता हूं, तो 6,000 मैं क्या कर रहा हूं, स्लो मूविंग आइटम को राइट ऑफ कर रहा हूं, तो मैं लेस कर दूंगा। ऐसे ही साथ में अब इसके बाद एक और चीज मुझे क्या बताई थी, तो इफ यू विल रीड फर्दर इट वाज गिवन कि हैवी फ्लड के कारण, ड्यू टू हैवी फ्लड, एक गुड्स थी जिसकी कॉस्टिंग थी 15,500 व रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब होता है कि मुझे ये सपोज करो 5 मार्च को डिलीवर करने थे, बट मेरे को सप्लायर के पास से हैवी फ्लड हुआ, तो मेरे को सप्लायर के पास से कब मिले मुझे गुड्स 6 मार्च को, तो 5 मार्च को तो डिलीवरी देनी थी, मगर हमारे पास आया 6 मार्च को, तो जो हमारा कस्टमर था उसने वो गुड्स लेने से मना कर दिया। एज अ रिजल्ट कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV जो मैंने आपको समझाया था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स वाज एस्टिमेटेड टू बी 12,500, जबकि गुड्स कितने का था 15,500 का था, और उसकी NRV कितने की आ रही है 12,500 की। तो मैं बोल सकता हूं गुड्स विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। तो 15,500 को वैल्यू को अगर मेरे को 12,500 लिखना है, तो वापस से मुझे 3,000 रुपए से क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू से एबनॉर्मल गुड्स रिटर्न ऑफ ड्यू टू लेस NRV। तो आई बिलीव 16,43,312 में से जब मैं 9,000 लेस कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू बच जाना चाहिए 16,034,312.5, 9,000 लेस करने के बाद। अब आपके मॉड्यूल में अगर आप इसको चेक करोगे, ये आपके क्लोजिंग स्टॉक का आंसर होना चाहिए। ये आपके क्लोजिंग स्टॉक का आंसर है, और आपके मॉड्यूल में आप चेक करोगे तो आपका 16,34,310 है। उन्होंने थोड़ा सा रॉन्ग करा है। व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल बी गेटिंग दिस आंसर ओनली। तो दिस इज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 9th। गाइस, आफ्टर दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 9th आप होमवर्क में कर सकते हो अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करते टाइम बस छोटा सा बात ध्यान रखना है कि उसमें बोला है कि बट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड वाज 20%, दिस इज ऑन कॉस्ट। तो ये 1/4 ऑन कॉस्ट है, तो आप इसको बस 1/5 ऑन सेल्स करके, जैसे हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करा था वैसा एज इट इज हो जाएगा। और गाइज इसके बाद जो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें सिर्फ लास्ट में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि बेरिंग दिस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20%। आपको बस ये 2 चेंजेस करने हैं। ये 2 कर समझने के बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो। ओके, तो आई बिलीव आपको ये बात सब समझ में आ गई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ वी आर लेफ्ट विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 3 and 5. So, 1, 3 and 4. These are again a very good type of practical questions that we are going to solve in our next lecture. Thank you very much.